immense pleasure that you being part of Sage Group. You this Today is Global Parenting Day, so wish you all a very happy Global Parenting Day. Happy Parents Day. Uh, it's an immense pleasure that in India there's a different definition of a parent. I think because यहाँ पे I personally feel that I personally feel that in India, parenting is taken very seriously. It's like कि आप 5 साल की उम्र में क्या कर रहे हो वो ठीक है, आप 10 साल 15 साल 50 साल की उम्र में भी क्या कर रहे हो वो पेरेंट जो है वो बहुत मायने रखता है. जबकि बाहर एक ऐसी चीज होती है कि आफ्टर probably when you start maybe when you're 18 that liberty is given where parents don't have that much say in your decision making, whereas in India there is a lot of power in parents for decision making in every aspect of a child, and that has its pros and cons also. But I personally feel that it has many pros, and it should be like this. Parents have their experience, which and children have their new age thinking, and the collaboration of both is the of utmost importance. So I welcome each parent of Sage Group here, of Sage University Indore, Sage University Bhopal, of Saga Group of Institutions, Sage International School, SIRT College, and a lot of other things are Agrawal Construction, Agrawal Power Private Limited, My Sage Hospital. A lot of parents have joined us today for the whole reason to know how to do parenting better. And who else to get it from the parent of all of us, from the guru, from the advisor of the Sage Group, of Dainik Bhaskar, of a lot of companies. This master is for a lot of years giving these kind of trainings and also helping people build a better life. And that is our our Sagian, our beloved Raghuraman sir. I welcome Raghuraman sir to this Sage talk of Global Parenting Day. I'm very happy that you accepted to be here with us in spite of your busy schedule. Raghuraman sir, trust me all, he wakes up at 5 and goes to sleep at 11, and in between not 1 second he's free and he enjoys it. He's like, यार मैं जब enjoy करता हूँ, मतलब हमारे साथ सर 3 दिन की ट्रेनिंग पे आए हैं, और मैं सारे पेरेंट्स को यहाँ बताना चाहूंगी कि सुबह जो 5 बजे से वो शुरू होते हैं अपनी मॉर्निंग वॉक से, हम सबको भी 5 बजे ही उठवाते हैं कि मेरे साथ आके वॉक करिए आप. तो 5 बजे से लगातार रात के 11 बजे तक गाइडेंस देना, किसी को समझाना, एक नई लाइफ के लिए मूव करना इज what makes Raghuraman sir apart from the other Sagians that are there in that we have maybe contacted with in our lifetime. So a lot of parents here, thank you so much. Thank you Raghuraman sir for accepting. He is a world-renowned editor, columnist in Dainik Bhaskar and other major institutes. He is alumni of IIT, and he is associated with Sage Group since few months. And since then, Sage Group has seen a lot of incremental growth in its happiness index, in its strategy making, in business making. So I'm very happy that we can listen to him. Not taking much of your time because आप यहाँ पे रघुरमन सर को सुनने आए हैं. तो सर, ग्लोबल पेरेंटिंग डे पे मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी ये पूछ के कि आज की पेरेंटिंग और पहले की पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? हाउ डिफरेंट इज टुडेज पेरेंटिंग when you compare it to your era, and how do you rate them? Please sir. Thank you so much, Sakshi, for all those series of appreciation that you gave it to me, and I'm really thrilled. Thank you so much. But to get such a kind of a recognition from young people like you makes me very, very more responsible towards my work. Thank you again. Coming to your specific question of. Acha, by the way, do you want me to be in Hindi or English, or how
how you want to take it forward? Mix. Okay, fine, great. When you ask me a question that how was the old parenting and the new parenting, I will very clearly say that parenting keeps changing from phase to phase. I will not say parenting of those era were good and this era is bad or something like that. लेकिन होता क्या है कि parenting की requirement बदलते जाती है. पेरेंटिंग की कुछ जरूरतें तब नहीं थी, अब जरूरत हो गई है, तो बहुत सारे बदलाव हम देख रहे हैं. लेकिन इस बदलाव का ये जो एक क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स के जो ओल्डर इरा में जो पेरेंटिंग करते थे उनका एक सिद्धांत होता था. उनका सिद्धांत ये होता था कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना, और वही सिद्धांत आज के जनरेशन पे वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. बच्चे को सक्सेसफुल बनाना. अब अच्छा इंसान बनाना और सक्सेसफुल बनाने में काफी अंतर नहीं है, लेकिन एक फंडामेंटल अंतर है. अगर आप अच्छा इंसान बन जाओगे तो सक्सेसफुल बन सकता है, लेकिन सक्सेसफुल बनने से ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. इसीलिए वो जो एक छोटी सी डॉट थी पुराने जमाने के पेरेंट्स की जो पॉइंट थी कि एक अच्छे इंसान बनाना चाहिए, उस पॉइंट को उठा लेना चाहिए अपने को, और उसके ऊपर आप सक्सेस का मोहर लगा दीजिए. यू एड लॉट ऑफ garnish it out with lot of other things. Nothing wrong in it, but 100% if you create a good human being, the possibility of that good human being successful in his life is far higher. That is the big difference that I see between the old parenting and the new parenting. अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जाए तो आधा घंटा भी कम पड़ेगा, 1 घंटा भी कम पड़ेगा कि किस तरीके से उस जमाने पे पेरेंटिंग करते थे और इस जमाने पे हम पेरेंटिंग कैसे करते हैं. और एक छोटा सा डिफरेंस आपको मैं देना चाहता हूं. उस जमाने में संवेदनशीलता, सिंपैथी, एम्पैथी, ये जो चीजों की जो डिस्कशन होती थी, वो कहीं ना कहीं आज के जमाने में मिस हो गया है. हम बच्चों को बहुत सेक्लूडेड और प्रोटेक्टेड बनाना शुरू कर दिए और उनको बाहर जाके खेलने से इनकार करा दे हैं. उनको हम प्रोटेक्शन, हाँ जरूरी भी है क्योंकि आज के जमाने में आप देखोगे तो बाहर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्राइम बढ़ गया है, तो हमें, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली इज आल्सो रिड्यूस्ड. सो इस सिद्धांत को रखकर अगर आप देखो तो हमारे करंट पेरेंट जो है वो प्रोटेक्टिव बन गए हैं. मानता हूं सही है, प्रोटेक्टिव बनना भी चाहिए, लेकिन एक लेवल तक सोसाइटी में उनको मिलाना भी चाहिए. और वो जो अनगार्डेड पेरेंटिंग है वो बहुत जरूरी है. आप हर वक्त उस बच्चे के ऊपर नजर मत रखिए कि वो करता क्या है. कभी कभी अनगार्डेड पेरेंटिंग भी करके देखिएगा. जब आप अनगार्डेड पेरेंटिंग करते हो तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. जो उन्हीं के ग्रुप में जो बड़े बच्चे होते हैं वो पेरेंट बन जाते हैं, और जब आपका बच्चा उस लेवल पे जाएगा तो उन छोटों को फिर ये करेगा. there are now courses which are happening in countries like UK and USA where children are left on their own without being guarded by anybody. तो उस प्रकार की जो पेरेंटिंग है वो उस जमाने में हम करते थे और आज वो सिस्टम बन के आ रहा है. उसको आने मत दीजिए. हम भारत वाले कोई बिगड़े नहीं है. हमारी प्रॉब्लम वो नहीं है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम टू मच ऑफ मटेरियलिज्म के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कम करना चाहिए. और मटेरियलिज्म जरूरी है, मटेरियलिज्म के बिना चलेगा नहीं. पैसे की जरूरत है, मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन एक लेवल का थोड़ा सा अटेंशन ऑफ पेरेंटिंग टू मेक दैट पर्टिकुलर चाइल्ड अ गुड ह्यूमन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ is more important. That's my request to you people. 100%, sir. And maybe your suggestion, everyone in this meeting will also, more than 500 participants, approximately 600 participants will follow, and other audiences from our YouTube and Facebook pages. We will be taking questions later on. So please, if you have any questions, you can do it on the chat box. I am not able to hear you, Sakshi. Can you? Suddenly your voice is gone.
Can you hear me now, sir? Yeah, I can hear you. Hello? Yeah, I can hear you. Okay, sir. Is it perfect now, or should I join from mobile? Yeah, no. Yeah, okay, Perfect. fine. Okay. Perfect. So, sir, second question I wanted to ask is that which is the biggest blackboard from where a child learn anything? Because they go to school, they go to university. Your voice is gone. It's getting jumbled. Dipesh sir, make me host. Dipesh, wait, sir. Dipesh sir, can you make this unmute from my it's also mobile also Sakshi available. Sorry, sir, there's some issue with the क्या क्या नाम से है? No issue. Take your time. Technology do give problems. We can't do anything about it. Let's not get tense. Even your voice is not coming. Is it clear now, sir? Yeah. Now, what you asked the last question, last line, I could hear it. Yes, sir. Sir, I'm just asking. No, it's again. It's gone. Right. Okay, so this is right. Sir, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Yeah. Perfect. So this has happened for the first time, sir. I am on mute there, but on my mobile I can say and yeah. No issue. No issue. No issue. Spotlight this and I can remove the laptop one. दिपेश सर मेरी लैपटॉप वाली रिमूव कर दीजिए जिसमें मेरा मीटिंग रूम है पीछे वर्चुअल बैकग्राउंड. Sir, I'll ask from here if that is okay. Yeah, absolutely fine. Perfect. Absolutely. I'm so sorry for the disturbance. No issue. Sir, the second question that we all wanted to ask you is which is the biggest blackboard from where a child can learn anything? Absolutely a fantastic question, Sakshi. People don't really understand that, what actually Blackboard is all about. In fact, let me answer this in a very, very crispy and straight fashion. It is the parent who are the blackboard. In fact, it is not what is written on a blackboard is, learnt by children. जो parent करते हैं, जो parent आपने अगर किसी से बदतमीजी से बात की, गलत बात की, अच्छी बात की, किसी को अप्रिशिएट की, या आपने जो भी किया, वो एक्चुअल ब्लैकबोर्ड बनता है बच्चों के लिए. बच्चों का सबसे बड़ा ब्लैकबोर्ड है आप, माँ और पिताजी और बड़े भाई, छोटे भाई, या घर में जो रहते हैं ग्रैंड पेरेंट, ये सब उसके ब्लैकबोर्ड है. और ब्लैकबोर्ड तो बेचारा 6 साल के बाद या 4 साल के बाद जो वो जूनियर केजी में जाता है तब वो देखता है. Otherwise, there is no blackboard for that child, in reality at home. But everybody is a blackboard for him. He learns action from the maid. He learns action from your driver. He learns action from mother, father, sister, brother, uncle, grandfather, grandmother. Whatever they deal with, whatever they talk, he or she instantly captures it and it becomes the biggest blackboard for him. इसीलिए पहले 6 या 7 साल जब बच्चा घर पे होता है, उस समय पे बहुत सावधानी से आपको पेश करना चाहिए अपने आप को घर के अंदर, क्योंकि
वो एक समय होता है, 7 इयर्स का एक बैंडविथ होता है जिसमें बच्चा सैकड़ों चीजों को साथ में सुनता है और वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो वो जो 6-7 साल जो घर पे रहता है, उस वक्त आप घर में क्या माहौल देते हो, आपका घर और आप सबसे बड़ा ब्लैक बोर्ड है और वो उससे सीखता है। बाकी ABCD, पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना, वो तो बहुत ही स्किल लेवल की बातें हैं और वो बहुत छोटी चीज है। लेकिन वो जो 7 साल में आप जो सिखा देते हो उस बच्चे को, वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं एक लेवल ऊपर जाकर कहूंगा, मैं हाल ही में भरतपुर गया था, भरत नहीं, आई वेंट टू बीकानेर, या आई वेंट टू बीकानेर टू ट्रेन द इंडियन आर्मी। एंड इंडियन आर्मी के एक मेजर जनरल जो थे वहां पे, उनकी very young person, he must be around 36 or 34, and he was becoming a parent for the second time, and he narrated a very beautiful incident to me. He says that every day at 7 o'clock in the evening he puts the light music, what you call musical instruments की जो म्यूजिक होती है, वो लाइट म्यूजिक उसको वो रूम में प्ले करते हैं और एकदम लाइट, डार्क, नॉट डार्क रूम बट एक लाइटली लिट रूम को एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जहां पे उसकी वाइफ, प्रेग्नेंट वाइफ फ्रॉम 3 months onwards, she sits and she sleeps. And you will not believe, he did that experiment with somebody else, and he found that person was immediately musically inclined बच्चा. So आपकी जो लर्निंग है वो आप देते हो, याद रखिए इस बात को। मीन्स उससे मैंने एक चीज, बहुत बड़ी चीज सीख के आई कि वो बच्चा पैदा होने के बाद आप सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ के पेट के अंदर ही वो सीखता है। तो इसीलिए आपको, जब आपको कंफर्म हो जाता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, from that time onwards that caution has to be given to those parents कि that आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह से मिलजुल के अपनी फैमिली को लेके जाते हो आगे, और किस तरह से आप संवाद करते हो आपस में। जब पिताजी माँ के साथ संवाद करता है, बच्चा सुन रहा है, याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ी चीज है ये। और ये अगर सीखना हम शुरू कर देंगे तो पेरेंटिंग विल बिकम अ वेरी हैप्पी प्रोसेस ऑफ creating some human being for this world. एकदम सही कह रहे हैं सर। इससे मुझे वो याद आता है कि बहुत बार होता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, बिजनेस वालों का बच्चा अच्छा। तो मतलब ये इसलिए क्योंकि उसने परिवार वैसे देखा है। Since the very start of his birth, he has seen if there is a musical person in the family, तो वो उधर इंक्लाइन हो जाएगा, तो वैसा। तो सर इससे मेरे एक थर्ड क्वेश्चन आता है कि बहुत बार बच्चा वो बन जाता है जो वो घर पे देखता है, बट बच्चे में बहुत सारी खूबियां होती हैं, तो हम उस कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करें एक चाइल्ड में और उसको नर्चर कैसे करें उस टैलेंट को? मेरा एक ये मेरा सजेशन है, बट ये वैरी कर सकता है पेरेंट टू पेरेंट, इसमें कोई दोराही नहीं है। लेकिन एक सजेशन मैंने जब बच्चों से डील करते हुए एक चीज सीखा है कि पहले 10 साल तक तो बच्चे को हर चीज को चखने की आदत दे दीजिए, हर चीज को। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो और थाली खाते हो, थाली में आप हर चीज को देखते हो, 2 सब्जी होता है, 2 दाल वैरायटी होता है, चावल होता है, रोटी होता है, पापड़ होता है, अचार होता है, सब कुछ होता है। तो लाइफ में उस बच्चे को सभी चीजों को टेस्ट करने के लिए एक मौका दे दीजिएगा। उसे आला कार्ट का ऑर्डर देने का मौका 10 साल तक तो कम से कम मत दीजिए। 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि वो किस चीज को पसंद करता है और उसको आला कार्ट कैसे बनाना चाहिए। ये जो डिफरेंशिएशन है वो उसको जब तक आप एक्सपोज नहीं करोगे तब तक नहीं मालूम पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि आप जितना चाहे एक्सपोज कर सकते हो, आपको उसको पेड़ में चढ़ाइए, पेड़ पत्तियों के बारे में बात कीजिए, फ्रूट्स के बारे में बात कीजिए, प्लेन में ले जाइए, ट्रेन में ले जाइए, मीन्स आप डिफरेंट तरीके के उसके ट्रैवल करवाइए, उसको हर चीज और हर एक प्रोफेशन के बारे में थोड़ी सी एक्सपोजर दीजिएगा। जैसे आप किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हो, बच्चे को जरूर ले जाइएगा। और हम बच्चे को लेके क्यों नहीं जाते मालूम है? उसको इन्फेक्शन आ जाएगा, उसको वो कहीं कुछ चीज को हाथ लगा देगा, वो बीमार पड़ जाएगा। हम डरते बहुत है, उस जमाने में डरते नहीं थे। उस जमाने में पेरेंट लोग बिंदास कहीं पर भी लेके जाते थे। तो ये जो डरना,
ये उसको उतना प्रोटेक्शन मत कीजिएगा. एक्सपोज हिम टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ. उससे क्या होता है, ही सीज ए डॉक्टर, ही सीज ए कंपाउंडर, ही सीज ए पेशेंट. जब वो तीनों को देखता है तो उसको समझ में आता है कि somebody is suffering and somebody is helping. तो उसको ये समझ में आता है हेल्प करना बहुत जरूरी है. And there is something called suffering in the world. तो वो सफरिंग को समझेगा कब? अब वो सफरिंग को नहीं समझेगा, हेल्प करने की जो नेचर है वो नहीं आएगा उसके अंदर. क्योंकि आजकल हम सुपर हीरो बन रहे हैं घर पे. तो पहले हमारे जमाने में मेरी मम्मी क्या बोलती थी मालूम है, बेटा मम्मी बहुत थक गई है, मम्मी को पैर दर्द दे रहा है. शी यूज्ड टू से दैट. तो उससे क्या होता था, उस पेन की जो रिलेटिविटी है वो बच्चे को समझ में आता था. तो वो पैर दबाता था, ओ मम्मी को तबीयत खराब है, मम्मी को नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कर दूंगा. तो आप यू गो एंड डू दैट पर्टिकुलर वर्क बिकॉज मम्मी इज अंडर पेन. सो दैट अनलेस द पेन इज शोन टू दैट किड, the kid will not have that empathy and sympathy for the work. This is my request to you. But lot of parents, what they do, they become superhuman being. No, I will get it done for you. You don't worry about it. You don't touch it. We will do it for you. No, let them do it for themselves. Let them do it for themselves. In fact, my mother used to train me when I was 5-year-old to make tea in a stove. उस जमाने में गैस के स्टोव नहीं होते थे, वो पंप वाले स्टोव होते थे. उस पंप वाले स्टोव में चाय बनाना 5 साल में सिखाया मैंने. तो आज अब अगर आप देखते हो, मैं हाफ ऑफ माय करियर हैव स्टेड ऑलवेज अलोन. माय फैमिली वाज ऑलवेज इन बॉम्बे, बट आई नेवर बॉदर्ड अबाउट कुकिंग बिकॉज आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ. नाउ दिस कुकिंग की जो सीड है वो 5 साल की चाय से निकली हुई है. तो वो जो कैरेक्टर है आपको बसाना पड़ेगा. डोंट गेट अफ्रेड, डोंट बी टू प्रोटेक्टिव. नथिंग विल हैपन टू द चिल्ड्रन. They are made to fly higher, but make them strong rather than being protective. Is my request to you people. 100% सर. आजकल तो स्कूलिंग में भी मुझे याद है पापा और जब ये लोग साथ में बैठते हैं तो बताते हैं कि टीचर तो ऐसे लगा के देती थी कि बच्चा शांत, और चल जाए तो बोलते थे तू नहीं कुछ करा होगा, टीचर ने तुझे मारा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और आजकल तो कुछ मतलब बहुत ही हमको एक सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ता है. बिल्कुल भी वी कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन. देयर इज अ लाइन नाउ बिटवीन द चाइल्ड एंड द टीचर. बट सर आई ट्रूली अग्री दैट कभी भी बच्चों को इतने कंफर्ट जोन में नहीं डालना कि वो वहां से बाहर आने में, क्योंकि दुनिया तो लाएगी आपको बाहर, कुछ भी हो जाए. पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रह नहीं सकते. तो अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कभी कभी उसका हाथ छोड़ना पड़ता है. Even Mukesh Ambani sir left Anil Ambani on road and went home. True. Right. मतलब वो जो शिक्षा मिलती है यहाँ पे सारे पेरेंट्स से यही है कि ओवर प्रोटेक्टिव रहने से बच्चे का नुकसान होगा. आपको लग रहा है उसका फायदा होगा, बट ऐसा नहीं होता है. मैं खुद का एग्जाम्पल और मेरी बहन दोनों का एग्जाम्पल बोल सकती हूँ. सबसे ज्यादा पापा जो चाहते हैं सबसे ज्यादा कड़क लाइफ वो हमको ही देंगे सबसे पहले. किसी से भी आप पूछ लीजिए. एंड ही इज नेवर आल्सो सैटिस्फाइड सर. पेरेंट कभी ये नहीं शो करेगा कि वो सैटिस्फाइड है, वो आपको बोलता उसमें, बट बिकॉज ही वांट्स यू टू एक्सेल. तो जितना आप एक पत्थर को जितना चेसल करते हैं उतना ही वो ग्लो करता है. तो यहाँ पे यस, एंड यहाँ पे बच्चों को भी ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स पे डोंट गिव अप. बहुत बार बच्चे गिव अप कर देते हैं कि माँ बाप हमको समझते ही नहीं है या फिर हमको यहाँ रहना ही नहीं है. तो आप लोग बहुत शॉर्ट साइटेड हैं जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपके पेरेंट्स की जो शिक्षा आपको मिलेगी वो आपको ही हेल्प करेगी इन फ्यूचर. तो ये आना बहुत जरूरी. ग्लोबल पेरेंटिंग डे पे मेरा मैसेज सारे बच्चों के लिए भी है कि ग्लोबल पेरेंटिंग डे बना है तो पेरेंट्स को तो है, बट आप लोगों के लिए है समझने के लिए पेरेंट की नीड. डू नॉट पुट योर पेरेंट इन अ होम, पुट देम इन योर ओन होम, राइट, और स्टे विद देम इन देयर होम. इट्स अ कम्युनिटी लिविंग. ये हमारी खूबी है इंडिया की. हमको वेस्ट को उनकी सारी चीजों में फॉलो करने की जरूरत नहीं है. यूज योर माइंड. व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर योर सोसाइटी, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर योर कम्युनिटी, एंड देन टेक एनी डिसीजन दैट यू वांट टू टेक. Sir, absolutely. You said you actually put the nail exactly where needs to be put. So yes. It's absolutely perfect. Right, sir. इसके साथ ही fourth question मेरा is parenting and art
और साइंस? इनफैक्ट ये लोग समझते हैं ये आर्ट है या ये साइंस है, मैं दोनों नहीं मानता हूं। इट्स ए कल्चर, इट्स ए कल्चर। सी, इस कल्चर में क्या होता है, आर्ट और साइंस दोनों मिक्स हो जाता है। हाल ही में आपने अभी 2-3 दिन पहले मैंने मेरे कॉलम में लिखा भी था कि कैसे छोटी छोटी चीज करवाते थे हमारे पेरेंट्स, जो एक्चुअली साइंस बेस्ड था, लेकिन उनको साइंस के तरफ से उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता था। जैसे उदाहरण के तौर पर, जाओ दौड़ के जाके दुकान में जाके लेके आओ कोई चीज को, आप बोले, वो मेरी मम्मी बोलती थी, जब उसको मालूम है कि मेरी पढ़ाई पे उतना इंटरेस्ट या फोकस नहीं हो रहा है। और आज साइंस ये कहता है, जब आपकी व्यू विंडो बदलती है तो आपका फोकस बहुत अच्छा इंक्रीज होता है। तो आप अगर दौड़ते हो, बाहर जाके देखते हो और किसी चीज को, किताब से नजर हटकर एक नया विंडो दिखता है आपको, तो आप जब वापस किताब में आते हो तो आपकी फोकस ज्यादा बढ़ती है। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन उन्हें पता नहीं था, ये इसको साइंस से रिलेट करके बताने का। कितनी बार मेरे डैडी ने हमको कहा है, नहीं रिक्शे में नहीं जाएंगे, हवा खाते हुए पैदल जाएंगे। तो मैं समझता था कि यार मेरे डैडी इतने कंजूस क्यों हैं, लेकिन वो कंजूस नहीं थे। टुडे साइंस सेज दैट व्हेन यू वॉक लीजरली, your mind wanders, and that wandering makes you creative person. तो हो सकता है कि अगर मेरी क्रिएटिविटी के पीछे कोई हाथ है, तो मेरे फादर के वो जो लाइन है, चलो हवा खा के आते हैं, हो सकता है वो हो। आई डोंट नो, I can't really prove it scientifically, but scientists say this. Scientists says that the more you go and हवा खाने के लिए जब बाहर जाते हो, your mind wanders, it sees different things and it absorbs those different things and it becomes creative. अब उसके सारे केमिकल फैक्टर, वो सारे चीजें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी, हम अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने एक दिमाग हमारे में डाल दिया कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ही कुछ बोलेगा तो अच्छा है। आई हैव अ सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। हमारे कलाचार में, हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे चीज थे जिसको आज वो लोग उसको कॉपी कर रहे हैं एंड वो लोग उसको प्रूव कर रहे हैं कि दे वर साइंटिफिकली राइट। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल दोस पीपल इज दैट गेट दैट फ्लैशबैक। आपके पेरेंट आपके साथ कैसे करते थे, उसकी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाइए, सोचिए। जिसको कहते हैं ना, जैसा काऊ जुगाली करता है, इंग्लिश में इसको रूमिनेट कहते हैं, जैसा खाना को वापस लाकर वो चबाता है, वैसे अपनी यादों को वापस लाकर आप चबाने की कोशिश कीजिए दिमाग में, और पता लगाइए कि आपके पेरेंट आपके साथ किस तरीके से पेरेंटिंग करते थे कि आप इतने अच्छे हो। अगर कोई चीज अच्छी लग रही है आपको, तो उसी चीज को अपने बच्चों पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। सो इट इज नॉट एन आर्ट और इट इज नॉट ए साइंस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, बट अ कॉम्पोजिट कल्चर which changes from time to time. उस जमाने में साइकिल रिक्शा था, उस जमाने में पोस्टमैन थे, आज के जमाने में पोस्टमैन कम हो गए, साइकिल रिक्शा चला गया, ऑटो रिक्शा आ गया। दैट मीन्स वी हैव मोटराइज्ड आवर लाइफ। सो आज की रिक्वायरमेंट अलग है, उस दिन की रिक्वायरमेंट अलग थी। तो आप जब सिविलाइजेशन जब फॉरवर्ड जाता है, तो उस पर सोचना चाहिए कि किस किस सिद्धांत को हमको थोड़ा सा पकड़ लेना चाहिए और किस किस सिद्धांत को मॉडिफाई करके ऊपर जाना चाहिए। तो बहुत हम उस जमाने में सवाल पूछते थे, और वो सवाल पूछना आज बंद हो गया। एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं साक्षी, कि व्हाट हैपेंस इज, 6 बजे के बाद झाड़ू क्यों नहीं मारना। अब उस जमाने में 6 बजे के बाद झाड़ू नहीं मारते थे। अब ये माना जाता था कि 6 बजे के बाद झाड़ू मारो तो महालक्ष्मी घर से बाहर निकल जाएगी। ये डराया जाता था, तो इसीलिए कोई झाड़ू नहीं मारता था। ठीक है, अब उस जमाने में ये चीजों की जरूरत थी। कभी जब बल्ब वॉज नॉट इन्वेंटेड, व्हेन पावर वॉज नॉट इन्वेंटेड, सूरज जब ढल जाता है, तो हो सकता है कि आपके बॉडी पार्ट में से कोई गहना गिर जाए और वो झाड़ू के साथ बाहर निकल जाए। क्योंकि उस जमाने में बैंक नहीं होते थे, करेंसी नहीं होती थी, वो जमाने में सिर्फ मेटल ट्रांजैक्शन होता था। आप अगर मेरे घर में काम किए, मैंने आपको मेटल दिया, मैं आपके घर में काम किया, आपने मेरे को मेटल दिया। देयर वाज नो करेंसी। सो उस मेटल को रखने की जगह हमारी बॉडी थी,
उसको ज्वेलरी बनाकर हम हमारे बॉडी में डालते थे। अब उस बॉडी को लेकर आप जब झाड़ू मारते हो शाम के टाइम पे, हो सकता है कि उस समय पे थोड़ी सी वो कहीं कोई कोई घूंघट या कोई घुंघरू या कोई एक छोटी सी पार्टिकल ऑफ का ज्वेलरी में से गिर जाए और चला न जाए। तो लेकिन सिद्धांत देखिएगा कॉमन है। उस जमाने में भी डर, उम्मीद, लालच ये बिकता था, इसीलिए उसको रखकर बेचते थे हर चीज को। वे डराते थे कि महालक्ष्मी आपके घर में से निकल जाएगी, ये डराना था। तो आप उस सिद्धांत को मानते थे। आज भी उसी चीज को लगा रहे। आज कोई भी एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए, हेमा मालिनी बोलती है मैं मेरे बच्चों को कैंट की पानी पिलाती हूं। आप कब पिलाओगे? वो भी आपको डरा ही रही है ना, एक प्रकार का डरावना ही तो हो रहा है वो भी, कि आप कैंट का पानी पिलाइए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो डेवलप जरूर होगी, लेकिन हर फियर, होप, ग्रीड जो होता है उसको समाज के लिए, उस टाइम के लिए वो परफेक्ट था। 6 बजे के बाद झाड़ू नहीं मारना चाहिए, उस जमाने के लिए परफेक्ट था, आज के जमाने के लिए नहीं, जब आप 400 वॉट और 800 वॉट के बल्ब लगा के बैठे हो। तो आपको समझना चाहिए कि ये ऐसे चीजों को हमने उस जमाने पे क्रिएट क्यों किया था, तो आप उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, तो यू विल नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। नहीं तो क्या होता था, ओ ऐसा कोई 6 बजे के बाद झाड़ू मारने से महालक्ष्मी घर से निकल जाएगी क्या? आप उसको निंदा मत कीजिए, आप उसको एनालाइज कीजिए कि वो उस समय पे वो पेरेंट उस तरह से क्यों करते थे। आप जब एनालाइज करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेलिजेंस बढ़ना शुरू होगा और आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। सो दिस इज द वे। सो इट इज आर्ट, इट इज साइंस, इट इज डिस्कशन, इट इज कल्चर। सो पेरेंटिंग इज अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग। एंड एक ही लाइन पे मैं कहूंगा, पेरेंटिंग इज एन इंस्टीट्यूशन साक्षी, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। तो इस आप जैसे आप इतने सारे इंस्टीट्यूशन चलाते हो, उसमें एचआर है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसी तरह पेरेंटिंग इज एन इंस्टीट्यूशन, उसमें सब कुछ होता है। तो उस सब कुछ को एक्चुअली आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने बहुत ही सही कहा सर। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि अपन की और इंडिया के जो एशियंस है या जो साइंटिस्ट्स हैं, सपोज मैं एग्जांपल इसी बोस का, तो ही वाज आई थिंक इन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और समवेयर, या कहीं पे सर थे वो यूके यूनिवर्सिटी में, वेयर ही वाज डूइंग हिज रिसर्च। देन ही केम बैक टू इंडिया एंड मद्रास में उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला। उसके वेलकम इनॉग्रेशन के दिन पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो भी रिसर्च होगी, एक भी रिसर्च को हम पेटेंट नहीं करेंगे, बिकॉज हम इसको हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, हम इसको ओपन रखना चाहते हैं पूरी दुनिया के लिए। अब यही चीज सर वेस्ट में छोटी से छोटी चीज पेटेंट होती है, हर चीज। तो वो पब्लिक डोमेन में उसके कारण पैसे आने लग गई, और लोगों को लगता है कि जो जितना डिफिकल्ट है पाना उतना ही वो महत्वपूर्ण है। एक ये सोच भी बन गई कि फ्री की एडवाइस क्या फायदेमंद है, पापा ने कह दिया, पापा तो कहते रहते हैं, अरे मम्मी क्या है, दादा दादी तो कहते रहते हैं, अरे भैया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने कहा तो हाँ यार बात है फिर। तो सर आपकी जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी सभ्यता में हमको सिखाया ही नहीं गया है कि आप खुद के लिए करो। हमारी सभ्यता में हमको ये सिखाया गया है कि आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो। तो हमारी सोच में ये आया ही नहीं कि मैं कैसे इसको प्रॉफिटेबल अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए बना लूं। तो मेरी यहाँ पे हर एक पेरेंट से, हर एक से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ये मैसेज जरूर दें। ऑन ग्लोबल पेरेंटिंग डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो रघुरमन सर मैसेजेस दे रहे हैं वो बच्चों तक बहुत जाने चाहिए, ताकि उनको समझ में आए हाउ टू लिव बेटर। सर इसके साथ ही एक आ रहा है कि को पेरेंटिंग बहुत ही एक न्यू टर्म है जो हर कोई यूज कर रहा है आजकल। तो को पेरेंटिंग इज स्लोली गेटिंग एक्सेप्टेड इन द वेस्ट, वेयर पेरेंट्स एंड टीचर्स आर शेकिंग हैंड्स, साथ में वो लोग बच्चे की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट सर? साक्षी, you already mentioned it. आपके प्रीवियस आंसर में आपने इसको इंक्लूड किया है। को पेरेंटिंग उस जमाने का सिद्धांत होता था, वो इनफैक्ट को लिविंग, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आजकल आप लोग बना रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उस जमाने में था ही। उस जमाने में आपके यहाँ कोई शादी हो रही है और आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं आपके घर में आऊंगा और मैं आपके घर पे देखूंगा कि वो दूल्हा है कौन।
मैं उसको सर्टिफाई करूंगा कि वो दूल्हा इस लड़की के लिए ठीक है कि नहीं है। उस जमाने में को लिविंग था कि हमारे गांव की लड़की अगर किसी के पास ब्याह होके जा रही है तो उस लड़के की कैरेक्टर को चेक करना एक बुजुर्ग का दायित्व था। वो जाते थे, आपने कार्ड दिया, कार्ड नहीं दिया, बुलाया नहीं बुलाया, उसे कोई मतलब नहीं है। यार शर्मा जी के यहाँ शादी हो रही है, उसकी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाना है। तो बेटा पूछता है आप क्यों जा रहे हो, आपको तो कार्ड भी नहीं दिया। बोले उससे क्या हो गया, शर्मा जी की बेटी तो गांव की बेटी है, मुझे जाना चाहिए। तो इस प्रकार का एक इन्वॉल्वमेंट होता था उस जमाने में, इवन किसी के शादी के लिए। तो ये जो को पेरेंटिंग है, ये तो वेस्ट ने एक नया वर्ड निकाल डाला है। ये तो हमारे सिद्धांत में था ही। कितनी बार रोड में मैं अगर कहीं खड़े रहकर कोई फिल्म की पोस्टर देखता था तो पीछे से एक आदमी आके मुझे टपली देता था सर पे, यहां क्यों खड़े हो, चलो घर चलो। सर कई बार हुआ है मेरे साथ में बचपन में। अब बात यह है, फिर मुझे बात बहुत दिन के बाद ये पता चला, जब बचपन में तो पता नहीं चला कि ये अंकल ने मुझे मारा क्यों। अब घर में आके मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये अंकल ने मुझे मारा, क्योंकि डैडी बोलेंगे तूने कुछ किया होगा इसलिए मारा, इसलिए हम बोल भी नहीं सकते चुपचाप। लेकिन वो गुस्सा लेकर घर पे आते थे हम लोग। बहुत दिनों के बाद पता चला कि छोटे छोटे शहरों में, मैं नागपुर में रहता था, तो छोटे छोटे शहरों में जहां पे फिल्म के पोस्टर्स लगते थे, वहां पे नीचे में छोटे छोटे ऐसे दुकान होते थे जो अश्लील चीजें बेचते थे। तो वहां पे बच्चा खड़ा नहीं रहना चाहिए, ये गांव का सिद्धांत था। तो आप कहीं खड़े रहोगे गलती से भी, भले ही आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो बड़े एक नादान बच्चे की तरह आप एक फिल्म के पोस्टर देख रहे हो, आपने कोई गलत नहीं किया, लेकिन एज ए पेरेंटिंग गांव का कोई अंकल आपके सर में टपली मारकर आपको वहां से निकाल रहा है ताकि आपकी नजर में वो गंदी चीजें नहीं पड़े। ये एक सोच है उस शहर का। नो दिस इज आप तो टीचर की बात कर रहे हो, पूरी समाज शुड बी ए को पेरेंटिंग। किसी और का बच्चा भी अपना ही बच्चा है, अपना गांव का बच्चा है, तो वो बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, कोई गलत चीज कर रहा है, उसको राइट लाइन पे लाना अपना दायित्व है। आज करके दिखा दीजिए साक्षी जी, करके दिखा दीजिए। उसका पेरेंट डंडा लेके 4 लोगों को लेकर घर पे आके खड़ा हो जाएगा कि आपने कैसे मारा मेरे बच्चे को। ये सबसे बड़ी वेदना है। यार तेरा बच्चा है, मैंने उसको धमकाया या उसको थोड़ा सा टपली मारा या उसको कुछ मैंने बोला, मैंने किसके लिए बोला? मैं मेरी पावर दिखाने के लिए थोड़ी बोला। मैं तो तुम्हारा बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए इस सिद्धांत के साथ बोला। उस सिद्धांत को नहीं समझते हो आप तो डंडा लेके 4 लोगों को लेके आके आप सेक्रेटरी चेयरमैन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाते हो। मेरे बच्चे को आपने बोला कैसे? ये बहुत बड़ी वेदना है। तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट, उसकी स्टार्टिंग लेवल जो है, उसकी जो नीचे का लेवल है, वो को पेरेंटिंग विद टीचर्स। क्योंकि आपके साथ जब बच्चा 8 घंटा रहता है तो टीचर के साथ और एक 6 घंटा रहता है, तो 8 और 6 घंटा जो मिक्सचर है वही पेरेंटिंग का सिद्धांत है। तो ये को पेरेंटिंग हमारे लिए नया नहीं है, ये एक नया टर्म वेस्ट के लिए है। हमारे यहाँ तो टीचर आते थे, तो टीचर अगर घर के बाहर से गुजरते थे साक्षी जी, मेरे पिताजी खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। आज अगर टीचर मॉल में दिख गया आपको भोपाल में, तो उसको जाके उसकी मां पूछती है कि मेरे बच्चे को आपने 2 मार्क कम कैसे दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि टीचर मॉल में जाके शॉपिंग भी नहीं कर सकती। अगर वो शॉपिंग कर लिया अपने घर के लिए, 5 पेरेंट आपको आके एकदम गला पकड़ लेंगे कि मेरा बच्चे को आपने वेरी गुड क्यों नहीं दिया, आपने मेरे बच्चे को 1 मार्क कम क्यों दिया, आप मेरा बच्चा तो लिखा सही था, आपने उसको गलत कैसे दे दिया। दुनिया भर के सवाल, दुनिया भर के सवाल। तो होता क्या है, बच्चा देख रहा है आपकी बिहेवियर को टीचर के साथ में, तो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस टीचर के प्रति उस बच्चे के दिमाग में जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो डिमिनिश होते जाती है। मैं इसीलिए कहा था आपके सेकंड क्वेश्चन में, ब्लैक बोर्ड जो है वो आप है, स्कूल का ब्लैक बोर्ड नहीं है। वहां तो स्किल डेवलपमेंट होता है, आप है ब्लैक बोर्ड। जब आप अपने उसके टीचर को रेस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं तो वो खुद अपने टीचर को रेस्पेक्ट देना बंद कर देता है। तो
पेरेंटिंग इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग. आप अपने टीचर के पाव पढ़ने में कोई मतलब नहीं है मैडम. आप अपने बच्चे के टीचर के पाव पढ़ सकते हो क्या? देन यू आर ए ग्रेट पेरेंट. देन यू आर ए ग्रेट पेरेंट. Wow. सो यू शुड थिंक इन दैट वे, बिकॉज जब आप उसके टीचर के पाव पढ़ते हो, या पाव मत पढ़िएगा, रेस्पेक्ट देते हो आप. जब रेस्पेक्ट देते हो, ऑटोमेटिकली वो बच्चा उसके टीचर को रेस्पेक्ट देना वाजिब समझेगा. So you have to practice it. My father, who was a class 1 officer in railways, he used to always stand when my teacher comes. Not because that lady was his teacher. That lady was my teacher. That is the beauty of parenting. That is the beauty of parenting. तो मतलब उसके, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे. सॉरी. मैं यही समझ रही हूँ कि बच्चों के साथ साथ, बच्चों की मानसिकता के साथ साथ पेरेंट्स की मानसिकता बदलनी पहले जरूरी है. बिकॉज दे आर थिंकिंग देन ओनली, बिकॉज बच्चे तो नादान है. मतलब मैं बहुत से बच्चे एक मोल्ड की तरह हैं. आप वो मशीन में होते हैं ना, आपकी उंगली उसको जैसा फ्रेम कर दें वैसा वो फ्रेम आएंगे. तो जो आप करेंगे वो ही आपको बच्चों को दिखेगा. आप घर पे अगर लड़ाई करेंगे तो उनकी वही डेवलप होंगी अंदर से कि हाँ, लड़ाई करके हमारा. अगर आप घर पे अच्छे से बात करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार वालों का ध्यान रखेंगे, तो उनमें वो वाली भावना आएगी. आप शेयर करें. हमेशा सर क्यों बोलते हैं कि जॉइंट फैमिलीज में बच्चे हमेशा शेयरिंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको बताते हैं अरे तुम्हारी तो भाई है, करो, उसको खाना दे दो, थोड़ा सा अपने खिलौने को आप करिए शेयर. तो उनके अंदर ये शेयरिंग की भावना आती है दैट एवरीथिंग दैट इज देयर्स इज आल्सो ऑफ देयर फैमिली. तो साक्षी, आपने बहुत ही टची एरिया को टच किया अभी. आज के जमाने में अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं तो वो पेरेंट 2 चॉकलेट लाता है. मेरे पिताजी ने कभी भी जिंदगी में 2 चॉकलेट नहीं लाया मेरे लिए और सिस्टर के लिए. वो कभी भी एक चीज लाते थे, एक ही चॉकलेट. बांट के खाओ. और ये बांट के खाना. और अच्छा, आप बड़ा भाई होने के नाते आप छोटी बहन को कितना भी दे दो, वो रोएगी कि मेरे को कम दिया. फिर भी वो इंसिस्ट यही करते थे कि अगर वो रो रही है तो उसको पटाओ, तुम्हारा काम है तुम उसको देना. तो वो जो देने की भावना है सिंगल चॉकलेट पे आता है, डबल चॉकलेट पे नहीं आता है. जब आप जितने बच्चे हैं उतना चॉकलेट लाओगे तो देने की भावना को खत्म कर दिया आपने. आप करते क्या हो? छोटू इधर आओ, ये तुम्हारा चॉकलेट. मुन्नू इधर आओ, ये तुम्हारा चॉकलेट. आप क्या कर रहे हो मालूम है? एज ए पेरेंट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो रहे हो. यार बच्चे लड़ेंगे, इसने ज्यादा खा लिया, इसने कम खा लिया, तो आपको मांडवली करना पड़ेगा बंबई की भाषा में. तो वही तो पेरेंटिंग है. बिल्कुल सर. मतलब आप अगर 2 चॉकलेट लाके उनको बिगाड़ दोगे तो फिर वो बांटेगा कभी. यस सर, इसी उसमें हमने क्योंकि ये वाला पॉइंट उठा है, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर कि क्योंकि मैं सेज इंटरनेशनल स्कूल को देख रही हूँ, तो मैं वहां का ही बता सकती हूँ that every teacher is doing activities in his or her own class जहाँ को शेयरिंग सिखा रही है. अब we cannot go to a home and say कि आप joint family में रहिए, या आप बहुत सारी families न्यूक्लियर हो गई हैं सर. तो यहाँ पे भी try every day that जो संस्कार शिक्षा है, how to respect, how to talk to भैया दीदी that work in your home, how to be with your friends, ये सारी चीजें शेयरिंग के साथ सेज इंटरनेशनल स्कूल में सिखाई जाती हैं. क्लास में ही रोल मॉडल होते हैं. बच्चे को अच्छा नहीं लगे कि उसके नेबर को कुछ दे रहे हैं, जब भी नहीं, यू शुड गिव. ये पूरी अब ले रहे हैं. बट इसमें को पेरेंट में हमको पेरेंट के बिना टीचिंग हो ही नहीं सकती 100% से, जैसा आप कह रहे हैं. तो टू ऑल दी पेरेंट्स हियर, प्लीज टॉक टू योर टीचर्स, कीप टॉकिंग टू देम, कीप कॉलिंग देम एंड टॉक टू देम दैट हाउ शुड वी डेवलप मोर ऑफ दैट स्टूडेंट. Because every teacher, I can to guarantee of teachers in Sage International School, Sago Group of Institutions and Sage University that every day they will work for the development of their child. Because यहाँ पे हम लोग ओथ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा कस्टमर, हमारा जो स्टूडेंट है वो हमारा गॉड है. That is the oath of Sage Group. ये सारे yes sir, कि मतलब हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हम उस बच्चे के लिए काम. अगर वो अच्छा बनेगा, और उसमें हमको पेरेंट्स की भी जरूरत है, तो उन पेरेंट्स को साथ में लेके हम, इसलिए आज ये वाला प्रोग्राम भी हमने सारे पेरेंट्स जो है उनके लिए करा है सर, ताकि साथ में अपन लोग उस बच्चे का डेवलपमेंट सोच पाए जो हमारे भविष्य को वो बच्चा संभालेगा. तो इसीलिए
सर मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जब आप बोल रहे थे सर, मैं थोड़ा सा गैलरी में जाके लोगों के एक्सप्रेशन देख रही थी, तो एवरीवन इज एंजॉयिंग इट अ लॉट सर। मतलब मैं देख रही हूँ Thank you. लोग Thank you स्माइल so कर much. रहे हैं, लोग मतलब थोड़े लोग मैं देखा ताली वाली से बजा रहे हैं क्योंकि म्यूट में है तो सुनाई नहीं दे पा रही है, एंड दे आर रियली गेटिंग यूजफुल। मैं देख रही हूँ बहुत सारे उसमें उन लोगों ने बच्चों को बैठा ही लिया है कि हाँ सुन अच्छा, so sweet, so sweet, so sweet, so Yes. sweet. एंड आप लोग के मैसेजेस आते जा रहे हैं, एवरीवन यू आर मैसेजिंग ऑन चैट, थैंक यू सो मच। वी विल कवर द क्वेश्चंस वेरी सून, सो कीप मैसेजिंग ऑन द चैट बॉट। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, हर चीज के लिए मार्क्स, आप मैथ का पेपर करो, आप 12th बोर्ड के एग्जाम्स, 10th बोर्ड के एग्जाम्स, आप यूनिवर्सिटी में जाओ, आप नीट में बैठो, आप पीएचडी, हर चीज के लिए एग्जाम है जो हमको बताते कि हम कहाँ लाई करते हैं। इनफैक्ट जॉब में भी मार्क्स होते हैं आपके इंक्रीमेंट पे कि भाई आपका इतना आपने पूरा करा तो आपको इतना इंक्रीमेंट, हर जगह पे आपको है कि थप्पा कि हाँ आपने ये करा। सब पेरेंटिंग ऐसी चीजें जहाँ पे हमको कोई आके ये नहीं बताता अभी कि आप 80% ठीक कर रहे हो या आप 90% ठीक कर रहे हो, और लोग अपने हिसाब से करते हैं। अब उनको जो लगता है बेस्ट है, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगा, तो सब अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर जब भी, हाउ कैन वन मेजर द सक्सेस ऑफ पेरेंटिंग सर? See, it's a very difficult thing to say. Mark can actually measure the success of the parenting. It is not possible. It is not possible. मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं। आप अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हो? 4 बंगला खरीदने वाला, 10 गाड़ियों में बैठने वाला, 15 नौकर चाकर रखने वाला, या एक खुश इंसान? आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। Means I will refer a very good friend of mine whom we lost in 2003, Kalpana Chawla, who came from, she's from a small town called Karnal in Haryana. And जब भी मैं उनके पेरेंट्स को मिलता था, मैं या उसको मिलता था, एक चीज मुझे समझ में आती थी कि वो उसे अपना चीज करने पे छोड़ दिए कि तुमको जो करना है करो। और कहीं सारे टाइम आई विल से कल्पना वॉज फार बेटर देन हर फादर, फार बेटर देन हर फादर। हाउ द चाइल्ड कुड बी बेटर देन फादर, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम आस्किंग एवरीबॉडी। जब भी आप एक पेरेंट होने के नाते आपको आपका बच्चा मार्क दे देता है उस जगह पे और आपसे आगे निकल जाता है, आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हो। आप सक्सेसफुल हो चुके हो, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन को देखना कहां चाहते हो? आपसे बेहतर। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपसे बेहतर अच्छा इंसान है, तो दैट इज ऑलवेज बेटर। लाइक कल्पना चावला was the only person I know in my friend circle who used to help this kind of children who were interested in science, but they don't have money. She used to get them from Karnal onwards to USA. नासा में उसको ट्रेनिंग करती थी 2 महीने का, टिकट देना, वीजा करना, सब कुछ वो खर्चा करती थी और वो वापस भेजती थी। और कितनी बार कल्पना के फादर ने कहा है मुझे, यार मैं कभी भी उसके बैंक अकाउंट को देखता हूं तो इतना कम क्यों होता है, पैसा समझ में नहीं आता। बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि शी वॉज इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ नॉवल थिंग्स। पॉइंट 1। एंड आप मानोगे नहीं, वो जिस काम ने शुरू किया था कल्पना ने, वो आज नासा कल्पना के नाम पे कर रही है। कल्पना आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी नासा इज कंटिन्यूइंग टू डू सो, जो कल्पना के पिताजी नहीं कर पाए, उनके पिताजी कर नहीं पाए। आप समझ रहे हो बात को? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। इफ योर चाइल्ड बीट्स यू इन योर ओन गेम and goes ahead and does something, that is the actual success of the parent. It's not the money, it's not the property, it's not the bank balance, it's not that materialistic acquisition. Materialistic acquisitions are part of it. It's part of it. Yes sir, मतलब मेरे ख्याल से तो सबसे सक्सेस होता है, हम जितने भी हम सेक्टर्स में भी हैं सर, इंसान खुश है कि नहीं है। आप 100%.
और डेथ बेड, आपको कुछ याद नहीं रहेगा आपने कितनी गाड़ियां हैं आपके पास कौन सा केबिन में बैठे हैं, आपकी डेस्क पे बैठे हैं, कि आप मतलब ये स्विमिंग पूल है कि नहीं घर में, ये सब नहीं रहेगा सर। आपको ये रहेगा आपने अपने रिलेशनशिप्स में खुशी मना के रखी और आप खुश हैं कि नहीं। सर एक स्टडी भी है जिसमें कहते हैं कि अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खुश वाले हो, आपकी लाइफ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत रेज हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसा आप कह रहे हैं, बट अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कि आप कैसे बना के रख रहे हैं अपने लोगों के आसपास जिससे आपकी खुशी आती है। सर मैं थैंक यू सो मच सर। अब अपन लोग पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस पे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर। सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट with a question from Dr. Akhilesh Upadhyay. He is asking that how to guide child about selection of his or her friend circle. ये मैं तो बहुत सिंपल चीज कहूंगा सर को, कि आपने रामायण में एक कहानी सुनी होगी कि जब सीता का हरण हो जाता है और राम सीता के लिए जंगल में भटकते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि रावण उसे लेकर चला गया लंका की तरफ। और आप अगर एक कंपनी के सीईओ हो और आपका बड़ी चीज कोई चीज चोरी हो गई हो, तो आप क्या करोगे इस जमाने में? आप क्या करोगे? उस आदमी को लेके आओगे जो वापस उस सामान को लेके आ सकता है। जैसे एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में वॉर होती है, उसी प्रकार की चीज है ये। आप जाके उसको लेके आओगे। तो उस जमाने में सीता को वापस लाने की काबिलियत किसके पास थी? बाली के पास थी। राम ने किया क्या? राम ने एक पेड़ के पीछे छुपकर बाली को मारा। और दोस्ती किससे किया? सुग्रीव से किया। और बाली मरते वक्त, यानी कि तीर उसके सीने पे लगी हुई है, और वो पूछ रहा है, हे प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसा कौन सा अवगुण था आपने मुझे मारा? तो तब अपेरेंटली राम कहते हैं बाली को कि जिस जंग के लिए मैं जा रहा हूं, वहां पे पहलवानों की जरूरत नहीं है मुझे, बलवानों की जरूरत नहीं है मुझे सदाचारों की जरूरत है, जो तुम नहीं हो, जो सुग्रीव है। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है, यू विल हैव टू चूज हु इज एक्चुअली मैचेस विथ योर वैल्यू सिस्टम। आप जब प्रोजेक्ट में जाते हो, किसको ले जाते हो? कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको जब कंपनी बेचती है, तो आप किसको ले जाते हो? हु मैचेस योर माइंडसेट, who can actually get the work done thinking at your mind. मौसी कोई आया क्या? नहीं, वो ही आम आया। तो that is the थोड़े लेके आ जाना आप, फिर वो आप सुन लिया हमने, आम आए आपके। नहीं आप ही के लिए आप ही के लिए। तो the question is that the friend should be chosen on the basis of the value system that you are matching with. कभी क्या होता है, एक फैमिली रहती है और एक दूसरी फैमिली रहती है। वो एक फैमिली जो है वो अपनी पूरी रिचनेस, पैसा, मटेरियल को एग्जिबिट करने की कोशिश करती है। अगर आप उस सिद्धांत को नहीं मानते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे को उस बच्चे के साथ मिलाना कम कर दीजिए। दैट इज द वे टू टेल दैट चाइल्ड, या यू टेल हिम दैट वो मटेरियल को एक्सपोज करेंगे, तुम चिंता मत करना, तुम अपने सिद्धांत पर पालन करना। तो आपको ये सिखाना पड़ेगा। सो यू हैव टू बिकम व्हाट राम हैज टोल्ड यू। राम हैज टोल्ड यू दैट आई विल चूज ओनली दैट पर्सन हु मैचेस विथ माय माइंडसेट। मुझे सदाचारों की जरूरत है, मुझे बलवानों की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही रावण को मार लूंगा, क्या जरूरत है मुझे? रामायण इज ए टीचिंग। इट टीचेस यू how to choose your friend, how to choose your project guy. You have to choose properly who matches with your thought process and value system. बिल्कुल सर, इसमें बहुत ही सही कहा सर, क्योंकि टीनेज एक ऐसी बच्चे जब स्कूल में छोटी क्लास में होते हैं तब अपने पेरेंट्स की बहुत सुनते हैं, बट इवेंचुअली दे मूव फॉरवर्ड टू हायर सेकेंडरी क्लासेस, जहाँ पे उनकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग थोड़ी आती है, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गलत ग्रुप के साथ जाने में। और उनको लगता है कि पापा स्मोकिंग के लिए मना कर रहे हैं, बट मेरा फ्रेंड तो देखो कितना कूल है। आजकल तो ये भी एक थोड़ा सा कि अरे स्मोकिंग इज कूल, और ये वाली चीज है कि आप बंक करो क्लासेस और ये सब थोड़ा सा। तो इसमें पेरेंट, उसको पता है बच्चे को कि पेरेंट मना ही करेगा और पेरेंट का वैल्यू सिस्टम नहीं है ये, तो उस टाइम मेरे हिसाब से कभी कभार आप लोग, मतलब मेरे साथ और हमारे
परिवार में तो हमारे पेरेंट्स ने हमको काफी स्ट्रिक्ट रखा. Our parents were very strict with us during our school days कि आप हमको सिर्फ पार्टीज वगैरह में भी नहीं जाने देते थे. अगर जो मतलब फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी हो तो उसमें भी ही वाज वेरी प्रोटेक्टिव. और रात को तो बिल्कुल भी नहीं जाना है. इनफैक्ट जब मैं मुंबई में भी पढ़ाई कर रही थी तो मुझे 9 बजे वीडियो कॉल आई जाता था कि बेटा पहुंच गए ना, खाना खा लिया ना आपने. ये सारी चीजें था कि मेरे ख्याल से क्या बच्चे उस टाइम पेरेंट बता भी दे तो समझना नहीं चाहता. वो ऐसा लगता है क्या यार मुझे बस बार बार बोलते रहते हैं. टीनेज जो एक रिबेल फेज होता है सर. बट उस टाइम पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स को काफी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और मतलब साथ में समझना भी चाहिए, उसको समझाना चाहिए लॉजिकली कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप. सिर्फ आप ऑर्डर मत दीजिए, आप उसको समझाने की कोशिश करिए. और वैल्यू सिस्टम के साथ ही आप अच्छा फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं, जो रघुरमन सर ने कहा है. और अगर वो वैल्यूज नहीं दिख रही है फ्रेंड्स में, आप प्लीज उनको लॉजिकली समझाइए ये क्यों ठीक नहीं है और उससे उन फ्रेंड्स को दूर करिए. सर एक और क्वेश्चन अपने पास प्रियंका शर्मा मैम से आया है. अपने पास 3 मिनट बचे हैं सर, तो आई एम रियली सॉरी हम सबके क्वेश्चंस ले पाएंगे. विल ट्राई टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन. सर द क्वेश्चन इज how to make a child ready to discuss their thought processes and feelings with parents without fearing our reaction. बहुत सिंपल है. आप हॉनेस्ट रहिएगा पेरेंट बच्चों के साथ में. हम बच्चों के साथ में हमारी आंसुओं को छुपाकर हम उसको खुशी देने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एट होम, टेल द किड दैट वी हैव अ प्रॉब्लम. That when you tell the problem that we have a problem, the kid will understand you in an emotional factor. हम हर बार क्या करते, वही मैंने पहले भी कहा था, हम सुपर पेरेंट बनना चाहते हैं. When you become super parent, you hide a lot of things behind the curtain. मत कीजिए. जितना ट्रांसपेरेंट आप रख सकते हो उतना ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश कीजिएगा. That is the best way to handle that emotional quotient of the child. IQ, EQ, adversary quotient, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बहुत जरूरी है. अर्जुन के लिए कृष्णा was a personal quotient. He was a friend rather than being a charioteer. He was a friend who told him that why you should kill your own brothers. So you need to become that particular Krishna for your child, because your child is an Arjun. He is a successful warrior. But unless you get a Krishna for the Arjun will not be successful. Arjun alone cannot be successful. So every child in this world is an Arjun. They have come over here to do something better. But everyone needs a Krishna. My question is that, are you that Krishna or not? If you are a Krishna, your child will become Arjun. बिल्कुल सर. सर लास्ट क्वेश्चन, बस बिकॉज टाइम की कमी के कारण. इन पेंडेमिक बहुत सारे बच्चे घर पे ही बहुत टाइम से हैं, अपने फ्रेंड्स से वो बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने बहुत मतलब एकदम एक क्लस्टर में आ गए हैं सर. उस टाइम पे पेरेंट्स ही है जो वहां पे टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स तो ऑनलाइन है, तो वो इतना कनेक्ट जो उनकी पॉजिटिव वाइब्स होती है वो बच्चे के पास जा नहीं पा रही है. तो उस टाइम पे पेरेंटिंग का जो रोल है वो बहुत गुना बढ़ जाता है. तो पेरेंटिंग इन पेंडेमिक, आपको क्या सुझाव है? एक लास्ट सजेशन हमारे सारे ऑडियंस, सारे पेरेंट्स के लिए जो यहाँ पे आए हैं, प्लीज. Become a psychologist. You as a parent has to become a psychologist. Because जब बच्चा एकदम डिप्रेस हो जाता है, उसको उस्ताह करना, मोटिवेट करना, उसकी बातों को समझना, उसके फेस रीडिंग करना. बहुत सारे पेरेंट फेस रीडिंग नहीं करते. आपने मेरे को देखा होगा, मैं जब भी कोई मीटिंग में बैठता हूं तो हाउ आई रीड सर्टेन पीपल एंड टेल यू. Now that is the quality of a parent. A parent has to read the face of a person and tell you that, यार उस जमाने में मम्मी क्या करती थी, चेहरा देखकर पता लगा देती थी कि आप भूखे हो. आप कहां बोलते थे आप भूखे हो? कभी नहीं बोलते थे. आपका चेहरा देखकर वो बोलती थी. तो was she qualified? She was not qualified. Yet she was a psychologist. So when you are qualified, become a great psychologist and read the face. That sensitiveness must. If you are sensitive to the issue, you will 100% be successful parent.
थैंक यू, मतलब एकदम सही कहा सर। और मैं सारे पेरेंट्स को यहाँ बताना चाहूंगी एंड आवर ऑडियंस ऑनलाइन दैट रघुरमन सर इज ऑल्सो टेकिंग अ सेशन ऑन स्टूडेंट लीडरशिप at Sage Summer School, which is starting on 7th of June. तो अगर आप अपने बच्चे को रघुरमन सर से डायरेक्टली ट्रेनिंग करवाना चाहते हो तो जरूर सेज समर स्कूल की वेबसाइट पे जाएं और आज ही रजिस्ट्रेशन करें, बिकॉज इट इज वेरी मच पॉसिबल कि सीट सारी फिल हो जाएं और आप उसके पहले अपनी पोजीशन वहां पे रिजर्व कर लीजिए। डायरेक्टली रघुरमन सर से आपके बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बैच बहुत कम साइज का है, मिनिमम बैच हमारा ओनली 30 का है, ताकि एक पे अटेंशन पे कर पाए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है दैट डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ही मुश्किल से हमने सर को मनाया है आने के लिए, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। थैंक यू रघुरमन सर, आज आप हमारे साथ आए हैं। एंड टू एवरी पेरेंट आउट देयर, अ वेरी वेरी हैप्पी ग्लोबल पेरेंटिंग डे टू एवरीवन। थैंक यू From my side also the happy parenting day for all of us. Thank you. Thank you so much.